नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल पंजाब दी जलंधर जिमनी चोण जितण तो बाद सुशील रिंकू ने आज आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ਅਤੇ मानयोग मुख मंत्री भगवंत मान ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आज आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल साहब से स्पेशली मिलने के लिए आए, क्योंकि इनके आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री साहब के आशीर्वाद से जो पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ है जलंधर का, तो उसमें बहुत बड़ा जो जन समर्थन है जलंधर के लोगों का मिला है। सो इसलिए मैं अरविंद जी का धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। और साथ में हमारे मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान साहब भी साथ थे। सो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में जो 1 साल में जो काम किए हैं, जन कार्य किए हैं, उनकी वजह से बहुत बड़ा जो समर्थन है पंजाब में जलंधर के लोगों ने जो आम आदमी पार्टी के हक में दिया है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 16 20 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲ ਪੈਣ ਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੱਟਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू कार्रवाई ली। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जीत का जश्न मनाया जा रहा है और ऐसा ही जश्न जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में हनुमान जी की फोटो और गदा पकड़कर नारे लगाए और पटाखे जलाकर कांग्रेस की जीत की खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये कांग्रेस की नहीं जनता की जीत है। इसका पूरा श्रेय हम देते हैं कर्नाटका की जनता को, उन बेरोजगार नौजवानों को जिनको साथ उन्हें वादा किया था सरकार ने कि हम नौकरियां देंगे, उन गृहिणियों को जो महंगाई की मार सह रही थी, उन बेरोजगार नौजवानों को जिन्हों की वजह से आज जनता ने इन जो नफरत की जो राजनीति इन्होंने शुरुआत की थी उसको नकारा। और कर्नाटक में सबसे पहले कर्नाटक लगता है कि ये जीत बूस्ट करेगी कांग्रेस 100% आने वाले समय में जितनी स्टेटों में आगे चुनाव हो रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ भी कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव नहीं करा रही, ये डर रहे हैं कि यहाँ से भी हम हारेंगे। इनको चाहिए यहाँ भी चुनाव कराए, कांग्रेस यहाँ पर भी सकता।
हरियाणा के गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड के पास एक शराब की दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के सेक्टर 55 स्थित वाइन शॉप में रविवार सुबह 5 बजे आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन आग से करीब 5 करोड़ से ज्यादा की शराब जल गई। देखिए, लगभग 6:30 बजे के आसपास हमारे ऑफिस में सूचना मिली सेक्टर 29 में कि सेक्टर 55 के अंदर ठेके में आग लगी हुई है। जस्ट उसी टाइम 3 गाड़ियां लेकर के हमारे अर्जुन सिंह लीडिंग फायरमैन जी और बाकी सारे स्टाफ को लेकर के और तुरंत मूव हो चुके थे। इन्होंने आने के बाद यहाँ से सूचना दी कि आग बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम 3-4 गाड़ियां और लेकर के आए। लगभग 7 गाड़ियों ने काम किया और आग इतनी भयंकर थी कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, बहुत विकराल रूप था। रोड पे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, जिसको बड़ी तत्परता के साथ सारे स्टाफ ने मिलजुल करके लगभग पौने घंटे में काबू कर लिया था। किस वजह से आग लगी कोई पता चला? देखो, आग का तो कुछ कार्य, ठेके भी बंद थे, हो सकता कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो या एसी ऑन होते हो, इनके फ्रीजर है, तो इसके बारे में क्लियर कुछ नहीं कहा जा सकता। कितना नुकसान का आकलन किया जाए? देखो, नुकसान के लिए तो फर्म ही बता पाएगी। लगभग मेरे ख्याल से तो 5-4 करोड़ का नुकसान तो इसमें होगा। कोई हताहत भी साथ नहीं, हताहत कोई नहीं हुआ लगभग, बल्कि हमारे स्टाफ को जरूर थोड़ी बहुत हीट लगी है। काफी रोड तक भी आग फ्लेम इसके जा रहे थे। बाकी तो कोई हताहत होने की सूचना तो हमारे को तो मिली नहीं है। दिल्ली के जंतर मंदिर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन 20 से ज्यादा दिनों से जारी है और ऐसे में आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजरंग पूनिया ने कहा कि IOA का फैसला हमारी जीत की तरफ पहला कदम है। विनेश फोगाट ने कहा कि हम सब चाहते हैं कि बीजेपी की महिला सांसद भी हमारे साथ आए, हम भी उनकी बेटियों के जैसे ही हैं। इस दौरान पहलवानों की तरफ से ओपन लेटर लिखा गया, जिसे बीजेपी की सभी महिला सांसदों से ये पहुंचाया जाएगा। पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि भाई हमारी बेटियों को न्याय दीजिए। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो कल एक स्टेटमेंट आई है ओलंपिक एसोसिएशन ने जो WFI को भंग किया है, तो वो खिलाड़ियों का, जो भारत की बेटियों का जो न्याय की लड़ाई, उसमें जीत का पहला कदम रखा है, क्योंकि पूरी बॉडी को भंग किया गया है और ये हमारी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। पहली जीत है हमारी और इसके बाद लगातार जारी रहेगी लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिल जाता। यूपी नगर निकाय चुनाव में आपकी सफलता पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, हमें कांग्रेस से भी ज्यादा सीट मिली है। आगे उन्होंने कहा कि हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि यूपी में धर्म जाति के नाम पर वोट मिलते हैं, यहाँ केजरीवाल मॉडल नहीं चलेगा, लेकिन लोगों ने उन्हें गलत साबित कर दिया। कई पार्टियों को हमने पीछे छोड़ा इस चुनाव में। राष्ट्रीय पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उससे ज्यादा वोट मिले, उससे ज्यादा सीटें आई और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात की चर्चा शुरू हुई कि अब सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति नहीं, अब सिर्फ बांटने की राजनीति नहीं, नफरत की राजनीति नहीं, बल्कि काम की राजनीति होगी। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को इस बदलाव की शुरुआत के लिए अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमसे एक ही सवाल पूछा जाता था कि भाई आप उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ते हैं, आपको लोग वोट तो देते नहीं। और एक मजाक भी उड़ाते थे, मैं आपको बताऊं, बड़ा बुरा भी लगता था कि भाई यहां तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे वोट पड़ता है, यूपी में आप लोग परेशान मत होइए, यहां अपनी ऊर्जा मत लगाइए, यहां कोई केजरीवाल जी के मॉडल को नहीं सुनेगा, यहां तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। लेकिन जनता ने इस बात को गलत साबित किया कि नहीं, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर नहीं, हम इनको भी मौका देंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने बीती कल 13 मई को आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से सगाई कर ली। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने सगाई करके एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और इनकी सगाई की रस्म दिल्ली में हुई। ये केवल उनके करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में हुआ। फंक्शन में प्रियंका चोपड़ा और मनीष मल्होत्रा जैसे शोबिज की दुनिया के कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। सगाई के बाद परिणीति और राघव की फोटोज भी सामने आई, जिनमें दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में पार्टी को मिली जीत के बाद कहा कि भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। जनता की समस्याओं पर बात की जाए, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली सरकार नहीं चाहती। सुनिए क्या बोली प्रियंका गांधी। आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण चीज यही रही है कि जो राजनीति जनता के ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है और जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है, वो राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। हिमाचल में भी हमने ये देखा, कर्नाटका में भी यही देखा। जनता चाहती है कि अपने अपने जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। क्या समस्या है? महंगाई, बेरोजगारी, जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार नहीं चाहती है। ये मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ा गया, इन्हीं मुद्दों पर। और ये चुनाव मेरे ख्याल से इसलिए जीता गया है क्योंकि जनता अब जागरूक बन गई है। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहती जो अपना ध्यान भटकाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फिल्म द केरल स्टोरी पर मचे विवाद पर एक बार फिर से बयान दिया और कहा कि भोली भाली लड़कियों को फंसाकर यातनाएं दी जाती हैं। हर मां बाप को इस फिल्म को देखना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर प्रदेश में सख्त कानून बनाया गया है। पिक्चर के माध्यम से पिक्चर के निर्माताओं ने एक धर्म विशेष द्वारा अपने धर्म के विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो चल रहा है, जिसमें भोली भाली लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनको अपने धर्म विस्तार के लिए ले जाया जाता है और तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। ये धरती का सबसे ज्यादा कलंकित अध्याय है। मेरा ये कहना है कि हर माँ बाप को इसको समझने के लिए अपने बच्चों के साथ इस पिक्चर को देखना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत पर राज्य की जनता को बधाई दी और कहा कि कर्नाटक की आवाम ने नफरत की सियासत को ठुकरा दिया है और मोहब्बत की सियासत को अपनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पॉजिटिव असर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने मोहब्बत से मजहबों को जोड़ा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जनता ने कांग्रेस का साथ दिया और उसे कामयाबी दिलाई। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि कर्नाटक चुनाव के प्रचार अभियान में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं ने सख्त मेहनत की थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो मैं आपके चैनल से कर्नाटक के अवाम को मुबारक करता हूँ कि उन्होंने नफरत की सियासत को ठुकरा दिया और मोहब्बत की सियासत को अपनाया है। दूसरी बात जो ज़रूरी थी कि जो यात्रा राहुल गांधी ने की थी उसका असर भी निकला भारत जोड़ने का, मोहब्बत से जोड़ने का, नफरत से जोड़ने का नहीं। मज़हबों की नफ़रत नहीं बल्कि मज़हबों के जोड़ के मोहब्बत पैदा करने की। मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस का हर एक वर्कर जो है, छोटे से छोटा क्यों ना हो, मैं उसको मुबारक करता हूँ। मैं खड़गे साहब जो उसके सदर हैं उन्हें मुबारक करता हूँ। मिसेस सोनिया गांधी जी को मुबारक करता हूँ कि इस उम्र में भी जब उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो उन्होंने भी कैंपेन किया। राहुल गांधी और प्रियंका वडेरा गांधी को भी मुबारक करता हूँ। इन सब ने काम किया, मेहनत की और लोगों में पहुँचे और लोगों से कहा हम नफ़रत की सियासत को छोड़ देना चाहते हैं और मोहब्बत की सियासत को बढ़ाना चाहते हैं। ये देश तब इकट्ठे रहेगा जब हम सब इकट्ठे रहेंगे, जब सब धर्मों में झगड़े नहीं होंगे बल्कि मोहब्बत होगी। उसने साबित कर दिया आज कि कर्नाटका के जनता ने इसको मान लिया और मैं उम्मीद ये करूँगा कि जो अब इनने वादे उन लोगों से किए हैं उनको पूरा करेंगे और वही एक शुरुआत होगी। तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।